what are the red flags that people should never ignore, which is your learning? इट्स लाइक कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन है, क्या बात की. शुरू में सारी चीज़ें अच्छी लगती है, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग यू सी फ्रॉम रोज टिंटेड ग्लासेस. Almost everybody is using it, which is called situationship. कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हुई, आई एम नॉट ऑफिशियली कमिटेड टू दिस पर्सन. एक ये इंसान है और यही मेरा भगवान है, यही सब कुछ करेगा. बट आई डोंट वॉन्ट टू बी टैग, don't want to be stuck with you. Modern women being quoted these days for their bare minimum behavior. Women regressed so much कि उनको अपने बेसिक राइट्स के लिए उनको कितना लड़ना पड़ा. हस्बैंड तो बोल देगा कि चलो ठीक है, माई मनी माई होम, गेट आउट ऑफ हियर. आपका पार्टनर अनअवेलेबल है और आपका पार्टनर आपके साथ तो है लेकिन वो आपके साथ नहीं है. वी आर सो मच इनटू सोशल मीडिया लाइफ, वी आर सो मच इनटू AI लाइफ, डिजिटल लाइफ, कि हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है. इंडियन क्रिकेटर की एकदम लास्ट डे पर शादी कैंसिल हो गई. डू यू बिलीव कि नज़र लगना रियल है? ऐसे तो अंबानी के पास पैसे ख़त्म हो जाने चाहिए. फॉर मेल फ्रेंड्स की भाईचारा ऑन टॉप, विमेन के लिए कि भाई औरत ही औरत की दुश्मन है. एक होता है ना कि औरतों का कोई घर नहीं होता. कोई अगर परेशानी में हो तो आप जनरली क्या करते हो? Why are Indian marriages failing? आज के डिजिटल नॉइज़ में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे बोलकर भी सीधा दिल तक पहुंच जाती हैं. मैं हूं तनय तुलसानी और आज मेरे साथ हैं नितिका मलिक, जिनका कंटेंट रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स और इमोशंस के बिना ड्रामा सिर्फ सच के साथ प्रेजेंट करता है. ये कॉन्वर्जेशन सिर्फ फील ज़्यादा करने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो इमोशंस को समझना चाहते हैं बिना जजमेंट, बिना शोर, बस ऑनेस्टी के साथ. सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड. सो आपके कंटेंट में ये सूदिंग वाइब्स कैसे आती हैं? ये मैंने जब आपका हैंडल देखा था तो देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ वाइब वेयर आई वांटेड टू सी ऑल द अदर रील्स दैट यू हैव पब्लिश्ड. सो ये नेचुरल है कि आप कुछ कार्मिक पूजा करके उसके अंदर उसको डालते हैं, बट हाउ डू यू डू इट? To be honest, I never realized it. कि when I speak, yeah, when I make those videos, when people reached out to me and then they said कि we really love hearing you, your voice, when you say something we feel calm and we feel things can get better. I think it's just that when I speak or when I make a video, I don't think of it as I'm making a video just for the sake of it. I just feel that I'm talking to somebody, as if I'm talking to a friend, and I talk from my heart as if it's a genuine concern for you. That मैं genuinely चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है, you're facing some issue, और वो ठीक हो जाए. I think it comes from that concern and care that कोई अगर परेशानी में हो तो आप जनरली क्या करते हो? You calm yourself and then you talk to the other person, and your depth or your calmness translates into that calm and that person feels okay. Yeah. I think it comes from that genuine care. So, but why not fintech? Because probably you've been doing fintech for the last 15, 16 years. How did you think of this? When was the first time when you thought about 3, 4 years ago कि मुझे ये करना है? Okay. The seed, I mean. Yeah. So I've been working since 2010 now. And it's been many years of my corporate career, majorly into finance and banking and fintechs. But it was during one of the Christmas, I think 3.5 years back. And I, my husband and my son, we went to a restaurant. और उनका एक काफ़ी बड़ा बुफे था, ब्रंच था. And nobody was there. Only we three were there. And I told my husband Aditya that I just feel that it's going to go waste क्योंकि इन्होंने कितने प्यार से बनाया है, and because it's a new restaurant, nobody knows about it. So, and I don't have that kind of influence on Instagram. Otherwise, I would have posted about it and people would know and they would come and they would help out this restaurant. And then my husband said, then why don't you? I said, I'm not that person. And कोई अगर इंसान कॉर्पोरेट करियर में इतने टाइम से हो तो फिर आपको लगता है आप थोड़ा सा रिजिड हो जाते हो रिगार्डिंग योर अप्रोच, एंड यू फील दैट द सोशल मीडिया इज़ नॉट योर एंगल, इट्स नॉट योर फील, एंड योर सेट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट is what you have been doing. Yeah. But he said, I think you should do it. And the entire idea came from helping that restaurant.
or helping people as such. And I thought that this is maybe my way of giving back to the society, wherein I can help them in ways जो मुझे लगता है, जो मैं आसानी से मैं कर सकती हूँ फिलहाल. And it came from that, and I started making those videos. I took some time in figuring out my way, and I made videos for almost a year, and nothing was going good at that time, as in there was no traction, there was nothing. I had hardly 800 followers, and after 8-9 months I was at a wedding, and suddenly it blew up. And I woke up in the morning, I had 10,000 followers, Wow. and by the month ended it was 50,000 followers. So what was the video that went viral? 5 signs that you are being manipulated. Oh wow. And a lot of people don't know ki when when they're actually getting manipulated, because it is such a common thing in corporate, in relationships, in friendships, or in any area you go to. So I thought, yeah, people should know about it, because when I was growing up, I have had a very simple childhood. It was free from family drama, ज़्यादा politics नहीं, because it was not a joint family. We used to visit our extended family on occasions, but we were a nuclear family, and it was pretty simple, straightforward family. Not much of कि क्या करना है, इसको ऐसे कहते हैं, ये बात छुपानी है, ये सब नहीं है. And मुझे ये जो वर्ल्डली वेज होते हैं ना, इनको समझने में बहुत टाइम लगा, and I struggled a lot. And I felt lost during that time, and it took me a lot of time to find myself. And I thought कि maybe मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो struggle कर रहे हैं, and maybe because of my experience they can get some help, and they can actually get to know, okay, ये मेरे साथ हो रहा है, and it is not my fault all the time. एक होता है ना that आप एक shell में चले जाते हो, because people start blaming you, they start manipulating you, they start using you. तो आपको लगता है कि आप में ही कमी है, and you just kind of go into a hollow shell, there's no way out. So that is a video that went viral, and within another month there was another 50,000. Wow. And by the time year ended, it was 1 lakh followers. Wow. So it was November and December, from 800 followers to 1 lakh followers. So there are a lot of people who are in relationships. I've seen a lot of advices that you kind of post, and there are a lot of people in relationships. They want to quit on their partners, but they can't for the reason that they've been together for a very long time, or किसी के किसी से बच्चे हैं, and there are societal pressures. But आपकी नज़र में what are red flags जहाँ पर आप manipulate हो रहे हो, या what are the red flags that people should never ignore, which is your learning? जब मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ regarding red flags or relationships, you know that there are a lot of people who would be with on your side, and they would agree with what you're saying, and a lot of people would say, no, I don't agree with you. So when I say this, a lot of people will say कि आपने खुद तो शादी कर ली, खुद का रिलेशनशिप है, खुद का बच्चा है, and then you are telling us कि ये red flag है, ऐसे मत करो. But it comes from that genuine care. When I speak about something, it is not about just my entire personal life. And I think I have, जो मैं teaching करती हूँ regarding relationships, या when I tell something about it, it also comes from a lot of those personal relationships. And when I say कि अगर किसी relationship में red flag है, which is अगर आपको एक basic respect नहीं मिल रही है in that relationship, you are being taken granted every time, you are not being taken care of in the basic possible manner, and you are being just treated as somebody who is a convenience to you. For example, जब हम example लेते हैं, so normally husband wife में से we pick the wife as a partner who's in the weak position. So but आप ये example वैसे लेना कि it can be anybody. Yeah. We can just say partner this and that, but it can be anybody. हो सकता है कि कोई husband या boyfriend हो जो परेशानी में हो, और हो सकता है कि कोई wife या girlfriend हो जो परेशानी में हो. So it is not gender specific. But for example, अगर इस केस में अगर हम एक वाइफ की बात करते हैं, वाइफ को सिर्फ रखा हुआ है कि वो अपना घर देखेगी, ठीक है, शी डज नॉट हैज़ एनी फ्रीडम टू स्पेंड मनी, और शी ऑलवेज हैज़ टू आस्क फॉर मनी. शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ. शी इज़ बीइंग ब्लैकमेल्ड दैट ओके आई विल नॉट गिव यू मनी if you don't listen to me. She is being dictated. So this is not a relationship.
इट इज़ जस्ट दैट आप मेरी लाइफ में हो, यू मेक माई लाइफ कन्वीनियंट, दैट इज़ वॉट यूर हेयर फॉर. और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, द योर बेसिक रिस्पेक्ट, योर केयर, योर लव, देयर इज़ नथिंग. आई थिंक ये सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होके ना वो रेड फ्लैग बन जाती है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अ लॉट ऑफ वुमेन दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दे फील स्टक कि कोई बात नहीं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे हैं, उनकी फ़ीस जा रही है, उनके ट्यूशन जा रहे हैं, तो आई एम इन दिस मैरिज, माई पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, बट मैं और कहाँ जाऊँगी, मेरे पास और कोई घर नहीं है, सो आई हैव टू स्टिक in with this marriage. My in-laws are troubling me so much, but my husband is not doing anything. But I don't have anywhere to go. अगर मैं कहीं और जाऊँगी, who will take care of my kids? Husband तो बोल देगा कि चलो ठीक है, my money, my home, get out of here. Parents बोलेंगे जाके adjust करो, नहीं तो you are also not welcome here. So उस situation में I think a lot of females feel stuck and they will be stuck because they genuinely don't have anybody who can tell them कि okay, don't worry, this is your home, you come here. एक होता है ना कि औरतों का कोई घर नहीं होता, विच इज़ ट्रू, विच हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स हैव ग्रोन अप विद दिस ट्रूथ एंड विद दिस आइडिया दैट यू डोंट हैव एनी होम. आपके घर वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा आगे वाला घर होगा, वो कहते हैं कि ये तो हमारा घर है. तो आपका तो कोई घर ही नहीं है. सो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ लव रिलेशनशिप, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, it can be in a family, maybe the in-laws or maybe your own parents have those red flags. And by here I don't mean that we should idolize anybody कि एक ये इंसान है और यही मेरा भगवान है, यही सब कुछ करेगा. I don't think कि आप एक इंसान पे इतना डिपेंडेंट हो जाओ हर चीज़ के लिए कि वो आपको खुश भी रखेगा, आपके लिए पैसे भी कमा के लेके आएगा. he will be like everything to you. I think that is also wrong of you कि आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशन एक इंसान पे डाल दो. आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर आपने उन केसेस को वर्कआउट किया है या आपकी तरफ आए हैं वो केसेस जो किसी ने आपसे डिस्कस किया हो थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू योर मे बी अ क्लास और अ कोचिंग दैट यू डिड व्हाइल सॉर्टिंग दिस और काउंसलिंग समबडी? I keep on getting messages on Instagram wherein people say that, my husband, I'm living here because I do not earn. I have my daughters. I don't know where to go. My husband does not treats me nicely, and my in-laws are not supportive. But my parents are also not supportive. What should I do? And in those, when you read those messages, you actually feel that क्या बताओ आप उस इंसान को, जिसने एक होप खो दी है, बिकॉज उसके पास कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, बच्चे उस पर डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, एंड शी नीड्स टू बी प्रेजेंट इन देयर लाइव्स. सो आप उनको क्या बोल सकते हो कि जस्ट एक बार यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट tell that person, your husband or your family, both the families in fact, that sorry, I will not be able to take this. Because once you tell the world or tell your family, okay, I'm not going to take this kind of behavior, I know it comes from a lot of strength. It is not easy कि आपने सालों साल तक ये झेला है and you are suppressed and suddenly कोई आपको बोल रहा है कि नहीं, just say no to this. It gets very difficult. But people who are pushed into a corner, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, I think suddenly they get that kind of strength कि ठीक है, I will say this, even it's not for me, it's for my daughters, for my children, and I will not let this behavior come to me again. And then फिर उनका दूसरा स्ट्रगल शुरू होता है. But at least they are beyond that stage one of suffering. यहाँ पर ये that they are standing, okay, I'm here for a fight and I'm not going to go down. While we're talking about the DMs that you receive, I have this question and I want to be quoted because it's okay to, I'm thinking that it's okay to ask you this. ऐसा क्यों है कि उनका bare minimum behavior आज के टाइम में बार बार डिस्कशंस में उठाया जाता है कि उनमें बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है? So what is your understanding to it? If we go to the, many years back, ages back, wherein women were tolerating everything and they were being useful in their, you can say, in their role.
however they were, whether it was corporate or family or in any relationship, wherein they were just complying and they were taking on any kind of behavior. So they were idolized कि ये देवी हैं, सब कुछ सारा स्ट्रगल अकेले करती हैं, सारी प्रॉब्लम खुद झेलती हैं, रोती हैं बट सारा काम खुद करती हैं, कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है बट ये अकेले मैनेज कर लेती हैं. एंड लुक वेयर इट हैज़ टेकन अस, दैट women regressed so much कि उनको अपने बेसिक राइट्स के लिए उनको कितना लड़ना पड़ा फ्रॉम द जेंडर हु was supposed to uplift them, बट दैट जेंडर वांटेड कि नहीं, ये जब तक हमारे काम किए तब तक ठीक है ना, आपको आगे बढ़ के क्यों आना है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी वुमन वांट्स टू वर्क और एवरी वुमन वांट्स टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन. अगर किसी का आई एम नॉट अ blind feminist, but I say that every human being, be it a man or a woman, they deserve equal rights and they deserve to live their life the way they want to. अगर आज मॉडर्न वुमेन है और वो उतनी ही पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, जॉब नहीं भी कर रही है, घर चला रही है, एंड शी इज़ टेकिंग ऑन सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन वाई शी शुड टेक ऑन द bare minimum behavior? She is expected to be at her best every time, whether she is pregnant, whether she has 2-3 kids, she is expected to take care of the family, to do her job, to take care of the house, to take care of the social calendar, to take care of the kids, the school, everything, to take care of the parties, the social life, everything. And बाकी पार्टनर, दूसरा पार्टनर क्या करता है कि ठीक है माँ, दिस इज़ योर थिंग. वाई? जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट, इट डज नॉट मीन्स दैट यू नो इट इज़ एक्सेप्टेबल. सो मुझे लगता है कि इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी आस्किंग कि आप अपने पार्टनर को बोलो कि सॉरी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेट्स जस्ट शेयर इट. सो इसका मिड वे क्या है, इसका मिड पाथ क्या है? इसका मिड वे ये है दैट यू शुड नॉट सी योर पार्टनर एज समबडी हु इज़ योर असिस्टेंट और हु इज़ जस्ट बीइंग बाय योर साइड एंड रिप्लेसिंग योर. अभी काफ़ी लोग ये समझते हैं कि माई वाइफ और माई जो भी है, जो भी फीमेल पार्टनर, शी इज़ माई असिस्टेंट, she is my cook, she is my homemaker, she supports me during my tough times, so she has to play so many roles just to make that man feel comfortable and you know make him grow higher in life. But at the same time, now women also needs that kind of partner. अगर आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक इंसान से रखते हो तो फिर आपको भी उतना करना चाहिए. सो आई थिंक if you are asking that your woman should be supportive of you, then you should also be supportive of her. कहते हैं कि आजकल लड़के बोलते हैं कि मेरी मदर एक लास्ट जनरेशन थी इनोसेंस की, और अब तो कोई इनोसेंस रहा ही नहीं है मेरे किसी भी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर में या मेरे करंट पार्टनर में कोई इनोसेंस रहा ही नहीं है. तो इस पर आपका क्या टिप है? आई वुड से कि हर जनरेशन के आदमी यही लाइन यूज़ करते हैं. ये जनरेशन बोल रही है कि हमारी जनरेशन की जो मदर्स है बहुत अच्छी थी, और उनके हस्बैंड्स ये कहते होंगे अपनी वाइफ को कि हमारी जनरेशन की मदर्स बहुत अच्छी थी. बट आप ये देखो एजेस से मदर इन लॉज का क्या रोल रहा है. मतलब दे हैव मोल्डेड द डॉटर्स एंड डॉटर्स इन लॉ कि उनको एक ढांचे में ढाला जाए कि कल को वो उस फैमिली में जाएंगी तो उसको सैक्रिफाइस करना है, उसको स्ट्रगल करना है, उसको पीपल प्लीज करना है, उसको हर जगह हाँ बोलना है. सो आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रॉन्ग थी. दे वर लोनली, दे वर अलोन एंड दे हैड टू डू ऑल दीज थिंग्स, एंड उसलिए उनको बोला हाँ ये तो देवी है. और वही मुझे लगता है आज के टाइम में देवी बन गई क्या, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग अ देवी? आपको लगता है कि आप इतने सैक्रिफाइस करो, एट द सेम टाइम यू आर नॉट, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू, आपके इन लॉज बिल्कुल आपको कॉर्नर करके रखते हैं, एंड द चिल्ड्रन थिंक मेरी माँ बहुत अच्छी है. एट द सेम टाइम जब उसकी एक बहू आएगी तो what will that mother do? अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करेगी या शी विल ऑल्सो कैरी ऑन दैट काइंड ऑफ पेट्रियार्की ट्रेनिंग. सो इतने सदियों से हमारी जो मदर्स होती आई थी कि मेरे साथ हो रहा है, ऐसे बुरा हो रहा है, probably this is the way of life and I need to teach my daughter also to this about how to do this, and my daughter-in-law also to fit into the cycle. And I don't think you should idolize कि आपने सैक्रिफाइस किया तो आप बहुत महान हो. आई थिंक एक बार को आदमी को सैक्रिफाइस करना चाहिए, उनको भी महान बनना चाहिए. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बहुत ही अच्छे थे, दे वर जस्ट लोनली एंड अलोन, दे हैड टू डू इट बाय फोर्स.
अगर आप किसी से पूछो कि आपका मन है स्ट्रगल करने का, आपका मन है सैक्रिफाइस करने का, टू गिव अप ऑल योर हैप्पीनेस, विल एनीबडी से कि हाँ मेरा मन है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूँ, मैं फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बस 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, मैं उसी में खुश रहूँगी, मुझे 1 सूखी रोटी चाहिए, उसी में खुश रहूँगी? कौन कौन सा ऐसा ह्यूमन बीइंग कहता है? कोई भी नहीं कहता. सो आई थिंक अगर आदमियों को लगता है ना कि उनकी माँ बहुत महान थी, एंड नो डाउट they have done a lot of struggles. My mother has faced a lot of struggles, and I'm not disrespecting any woman by saying this. I really feel कि जो उन्होंने किया है शायद कोई आदमी नहीं कर सकता. तो अगर आदमियों को इतनी ही इंस्पिरेशन लेनी है तो वो इंस्पिरेशन फीमेल्स को ना दें, क्योंकि उनके पास वो है. आई थिंक वो इंस्पिरेशन को खुद लेनी चाहिए, एंड फॉर वंस आई थिंक दे शुड ऑल्सो स्टार्ट taking on that kind of a role, wherein कि I can also be that kind of person for my family. Not just सारी expectation एक female आई, अब चलो अभी तुम्हारा काम है. And then she's being trained for it. So I don't agree with that. So कैसे पता चले कि in the middle of all of this आपका पार्टनर unavailable है और आपका पार्टनर आपके साथ तो है लेकिन वो आपके साथ नहीं है? साथ में इस ऐसे सिचुएशन को अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया जाए तो एग्जिट कैसे होगा? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप अपने फ़ोन पर हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मेरे दिन में कुछ ये प्रॉब्लम्स हुई, आपने कहा ठीक है. फिर अगले दिन मैंने बताया कि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरी लाइफ में या मेरे ऑफिस में या घर पे, आपने कहा ठीक है कर लेना, देख लेंगे. फिर मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा मुझे फ़ीवर है, शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. आपने कहा हाँ चलो ठीक है, हो या कर लो. एंड यू फील कि आई एम टॉकिंग टू समबडी who is just so self-involved, and उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, who is not अपना फ़ोन साइड में रख के, जहाँ पर भी उसका दिमाग है उसको साइड में रख के वो आपकी बात सुने. एंड डे इन डे आउट व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट सीन, मतलब एक होता है ना कि आप रिलेशनशिप में, मुझे पता है, अरे आफ्टर सीइंग यू आई कैन टेल यू कि अरे यू आर वेरी टायर्ड, लेट मी मेक टी फॉर यू, या आपकी तबीयत ख़राब लग रही है. बिफोर यू से समथिंग आई एम देयर फॉर यू, एंड एज सुन एज यू से इट आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ इट. अच्छा तबीयत ख़राब है, बताओ क्या हुआ है, कौन सी दवाई चाहिए, डॉक्टर के पास चलते हैं, घर में क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए. या तुम्हें कहीं बाहर जाना है, या तुम्हारी क्या परेशानी है, बच्चे परेशान करते हैं, चलो मैं बताता हूँ. सो मुझे लगता है कि एंड सिमिलरली देयर आर ऑल्सो फीमेल्स हु आर इमोशनली अनअवेलेबल, बिकॉज एक चीज़ होती है ना, आजकल वी आर ग्रोइंग अप डिटैच्ड. We are so much into social media life, we are so much into AI life, digital life, कि हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है. अगर कोई मुझे अपनी परेशानी बताए तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे उससे पूछना कैसे है. आई फील ऑकवर्ड. तो बहुत अभी जो जनरेशन है उसके साथ ये हो रहा है कि अगर आप थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, आई विल ट्राई टू एवेट द टॉपिक बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. एंड दैट इज़ व्हेन यू फील कि याद है जब पुराने ज़माने में, जब नॉट ज़्यादा पुराना ज़माना, जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, कज़न्स होते थे, सिबलिंग्स होते थे, यू यूज्ड टू गो टू योर मे बी ब्रदर और दीदी और अ कज़न, यू टॉक, एंड देन दे सी चल भाई है तेरा, तेरे को देख लेगा, तेरे स्कूल में कुछ इशू है देख लेगा, वेर एन यू फील सेफ. अगर आपको उस कॉन्वर्जेसन में, उस रिलेशनशिप में ये नहीं लग रहा ना कि आप इस इंसान के साथ सेफ फील कर रहे हो कि ये है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन यू रियली फील कि यार मैं किसी के साथ हूँ तो सही, बट कोई मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा है, मैं अकेले हूँ, ये अकेले है, ये अपनी लाइफ अपने हिसाब से कर रहा है, और मैं कितनी भी कोशिश करूँ बट देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, इट्स जस्ट लाइक टॉकिंग टू अ रोबोट. सो आई थिंक इमोशनल अवेलेबिलिटी इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट. बिल्कुल कहते हैं ना कि प्यार के साथ साथ इज़्ज़त और इमोशनल अवेलेबल. अब ना प्यार के साथ, अब बिकॉज हमें इतनी सारी चीज़ों का आइडिया लग गया है तो इसीलिए अभी लोगों को लगता है हम बहुत डिमांडिंग हो गए हैं. प्यार में भी सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, पैसा भी चाहिए, अब रिस्पेक्ट भी चाहिए, अब इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहिए. सो आई थिंक सम थिंग्स हैव बिकम नॉन नेगोशिएबल. और आज की डेट में जो हम इतना डिटैच्ड है तो इमोशनल अवेलेबिलिटी होना और भी ज़रूरी है. और अगर सपोजिटली ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, ये मेंड नहीं हो रही, तो इसमें एग्जिट कैसे किया जाए? बहुत सारे लोग बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, और दे कांट जस्ट गेट आउट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम दैट दे हैव क्रिएटेड अराउंड देम. इसका एग्जिट का तरीका क्या है? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील कि उनको कोई और नहीं मिलेगा, दे विल बी सिंगल
दे विल बी लोनली. आज के टाइम पे अगर आपको प्यार मिल जाए, फॉरगेट प्यार, एक डिसेंट रिलेशनशिप मिल जाए, आपको लगेगा इट इज़ सच अ बिग विन फॉर मी. Yeah. Because people are scared of being alone, they are scared of being with the wrong person. और जो इंसान मिल गया तो उनको लगता है कि यार ये कहीं ना चला जाए तो मे बी आई कैन टेक इन द बेयर मिनिमम. बट आफ्टर दैट दे रियलाइज कि यार ये तो बहुत ही कम है, ये इंसान तो है ही नहीं. जस्ट बिकॉज आई एम स्टक एंड आई एम स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन, आई डोंट हैव फ्रेंड्स और फैमिली, कोई भी नहीं है, सिर्फ ये इंसान है, तो आई विल नॉट गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. एंड आई थिंक दैट इज़ द मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल डू. तो उनको लगता है कि इसी के साथ रहो. बट मुझे लगता है इन द लॉन्गर रन व्हेन यू फील दैट ये इंसान वो है ही नहीं, एंड आप एज अ पर्सन यू विल डिमिनिश योर लाइट by staying with that person. And then I think you should just end that thing. You should just tell the person कि you should have an honest conversation with the person कि देखो ये सारी चीज़ें मिसिंग है, what can we do about it. और मुझे लगता है रिलेशनशिप में ना हमेशा आपको चांस देना चाहिए. यू शुड नॉट बी लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स ब्रेक अप. आई फील if it is of any worth or any value, or if it holds a special place in your heart, I think you should fight for it. And you should tell honestly what are you missing. इस डर से नहीं कि ये छोड़ के चला गया तो, या छोड़ के चली गई तो. यू शुड बी ऑनेस्ट, हाँ मुझे ये चाहिए इस रिलेशनशिप में, कैन यू गिव मी दैट. एंड इफ द पर्सन से सॉरी, आई कांट, तो फिर आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. आजकल रिश्तों में एक नया टर्म यूज हो रहा है, डिंक, डबल इनकम नो No किड्स. kids, yeah. आपका इस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? Okay, so I have a couple of friends who are not married yet and who do not intend to get married. And then I have seen a couple of friends who are married but they don't want to have kids. And a few more friends who are like, we should have minimum of 2 kids. And a few say, okay, we have our own life, so only 1 kid is enough. So I think in this day and age, couples are really smart in terms of what they want from their life, because our parents did not get that chance. They were told by their parents that what you need to do, how many kids you need to have a boy. Even if you have 4 girls, go for, try again. So I think हमारे केस में या इस जनरेशन के केस में वो नहीं है that nobody is pestering them. Especially if I talk about the metro cities, कि nobody is pestering them. And if anybody wants to go for that decision, I think they should be able to live their life the way they want to. Nobody should force them to. I believe if I want to have 2 kids, I will go for 2 kids. And if I think that no, I want to live my life my own way, I don't want to have any kids, I think it should be fine. I should not fall into some kind of society pressure. Okay. So I think it's totally fine. Okay. Because you get one life. Yeah. So it's better to live the way you want to, rather than just living for the society and what they think or approve of. आजकल एक बड़ा नया टर्म है, rather almost everybody is using it, which is called situationship. A lot of people talk about not getting committed yet getting committed by being in a situationship. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये situationship होता क्या है और होना चाहिए नहीं होना चाहिए? So situationship is जब आपको लगता है कि चलो ठीक है, मुझे एक इंसान अच्छा लगता है and I love talking to that person. It is not a formal relationship, but एक unsaid है that okay, I'm in sort of a situationship/relationship with this person. But कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हुई, I am not officially committed to this person. So we can just move our own ways. And similarly, I can have multiple situationships. I can have multiple people. Okay, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये है. It's like trying people or seeing कि इसकी emotional question कैसी है, या how this person handles being in a committed relationship. But at the same time, this generation has seen a lot of bad marriages, toxic behavior at home, how the mothers were treated by the in-laws, how fathers were not allowed to do what they want to. Bad relationship as in, एक toxic माहौल है घर में, but since divorce is not allowed because it is not in our culture. So I think एक उन्होंने वो देखा है कि यार शायद relationships ऐसे होते हैं.
या उनको कमिटमेंट से डर लगता है कि दिस इज़ व्हाट अ कमिटमेंट विल एंटेल, सो दे वांट टू जस्ट बी आउट देयर, नॉट बीइंग फुली कि चलो ठीक है। द मोमेंट दे फील कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, या थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, एंड आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, दे विल रिट्रैक्ट बैक कि ओके। पर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशनशिप्स ख़त्म होने के बाद ज़्यादा हर्ट होता है, जो मैंने स्टोरीज समझी हैं और सुनी है। ऐसा क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली आप चाहे उसको कुछ भी नाम दे दो, चाहे आप सिचुएशनशिप बोलो, आप डेटिंग बोलो, रिलेशनशिप बोलो, अगर आप किसी एक इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आखिर में यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल हैव दोज फीलिंग्स फॉर दैट अदर पर्सन। हाँ, मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ कि चलो ठीक है, आई एम डेटिंग यू ऑफिशियली, आई एम नॉट अनाउंसिंग द वर्ल्ड, बट माई फीलिंग्स आर जेन्युइन, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी टैग्ड, आई वॉन्ट डोंट वॉन्ट टू बी स्टक विद यू, Yeah. एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू बी फ्री कि मुझे किसी के साथ बंधना नहीं है। Yeah. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द जनरेशन इज़ थिंकिंग कि आई वुड बी देयर, हाँ हूँ भी नहीं भी हूँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन द sort of breakup happens, of course anybody will feel hurt. So I think, but at the same time they are also not okay going back to that person and saying ki, okay, let's do a real relationship, let's forget about whatever the fancy word is called. Let's be together and just fight our ways through it. I think the moment things get difficult, and for people our age also, मुझे लगता है कि people who have been married for 10-15 years, it is difficult to stay in a marriage and resolve the conflicts and to make sure that it goes smoothly, because life throws so many curveballs at you. Yeah. It is not easy to be in a relationship or a marriage. It is constant work. So I think वहाँ पर जब वो लगता है ना कि ये अब ये रियल वर्क शुरू होने वाला है, सो ओके, आई एम नॉट फॉर इट, आई एम नॉट रेडी फॉर इट नाउ, सो मे बी लेटर. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज. या रिलेशनशिप्स में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में नॉर्मल होती हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, अ पार्ट ऑफ द एवरीबडी लुक्स एट अ बिगर पिक्चर, बट वो एक्चुअली टॉक्सिसिटी के मेन रीजंस होते हैं जो आगे जाके पता चलते हैं, और फिर ऐसी लड़ाई होती है कि तुम तो पहले मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाते थे और अब तो तुम्हारी बातें बिल्कुल ही उल्टी हैं, वर यू अ लायर, एंड वाइस वर्सा. सो ऐसा क्यों होता है, और क्या आपका इस पे थॉट प्रोसेस है? सो आई स्टार्ट विद द बेसिक, कि जब आप शुरू में रिलेशनशिप में होते हो, सो एवरी टाइम कि खाना खा लिया, Yeah. एज बेसिक एज दिस, खाना खाया, क्या खाया, अब क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली बीइंग ऑन द फोन, दैट इज़ ओके, बट इट्स लाइक कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन है, क्या बात की. सो शुरू में लगता है कि चलो ठीक है, ये कंसर्न है जेन्युइन, आई वॉन्ट टू गेट टू नो अ पर्सन और हिज फ्रेंड्स और हिज फैमिली, सो दैट इज़ आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस. बट अगर ये कंटिन्यू होता रहता है कि मे बी आई एम अ पर्सन हु इज़ लाइक हमेशा पुटिंग क्वेश्चंस एट यू कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, एंड देन यू फील कि यार मैं तो बंद गया हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कहीं अपने बॉयज़ नाइट आउट के लिए नहीं जा सकता, बॉयज़ ट्रिप के लिए नहीं जा सकता, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज आस्किंग दोज क्वेश्चन, शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग मी. शुरू में लगता था कि नहीं, ये तो ठीक है, नॉर्मल ही है, हर कोई पूछता है. या जैसे फीमेल्स के लिए अरे तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ का क्राउड अच्छा नहीं है, और लड़के ऐसे होते हैं, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता. ठीक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन कंसर्न, बट देन धीरे धीरे योर लाइक योर चॉइसेस आर बीइंग ड्रिवन कि नहीं नहीं ये नहीं पहनोगी तुम, और आगे कहीं जाने से पहले यू आर ऑलवेज लाइक कि ये पहन लूँ, नहीं नहीं ये नहीं, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन टेलिंग यू कि नहीं इसको चेंज करो, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, एंड देन यू फील कि यार मेरी तो कोई अब चॉइस ही नहीं रही है, अब तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा. या उससे पहले व्हेन यू स्पेंड मनी, इट बिकम्स, पहले होता था कि हाँ ठीक है कि कहाँ स्पेंड कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, शुरू में यू आस्क, शुरू में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग यू सी फ्रॉम रोज टिंटेड ग्लासेस, कि कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे भी रहना अच्छा लगता है, कि अरे तुम लड़कों से बात करती हो, मुझे जेलस फील होता है, तो लड़की सोचती है हाउ क्यूट. बट ठीक है, एक दो इंस्टेंसेस ठीक है, बट इफ़ इट हैपन्स अगेन, देन द गर्ल हैज़ टू लेट गो ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स, बिकॉज द गाय इज़ दैट गाय दैट हु विल ऑलवेज फील जेलस. सिमिलरली अगर लड़की ये सोचती है कि तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम फैमिली के साथ क्यों जा रहे हो, हमेशा मेरे साथ रहो, तो फिर आगे जाके वो लगता है दैट द गर्ल इज़ नॉट समथिंग हु इज़ ओके विद शेयरिंग दैट पर्सन, दैट पार्टनर. सो आई थिंक शुरू में जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, यू जस्ट सी इट फ्रॉम अ
एंगल कि अगर यही सेम चीज़ 1 साल बाद भी हो रही है, 2 साल बाद भी हो रही है, इट इज़ हैपनिंग एवरी डे तो ऑफ एक योर गड़बड़ लाइफ, है। सो आर यू ओके विद इट? अगर कोई मुझे आज बोल रहा है ये चीज़ मत करो, ठीक है, आई एग्री, बट अगर मैं इसको ये ऐसे सोचूं कि अगर 10 दिन तक ये रोज़ होता रहे, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, तो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ कि वेदर आई विल बी ओके विद दिस बिहेवियर, दीज क्वेश्चंस एवरी डे ऑफ माई लाइफ, एंड इफ नो देन दैट इज़ योर रेड तो फ्लैग. क्या ये एक फैमिली मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आफ्टर गेटिंग मैरिड या बच्चे होने के बाद कहीं दोस्तों के साथ ना जाए घूमने, मेल फ्रेंड्स के साथ या फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और वो अपनी वाइफ को हमेशा लेकर जाए? हमारी सोसाइटी के हिसाब से क्या वो नॉर्मल है कि वो अब नॉर्मल है? वो अब नॉर्मल है. Yeah. I think every man and every woman after marriage or being in a relationship, they should be allowed, like literally they should not be asking this permission कि यार मतलब वो अपने पार्टनर को बताएं कि यार ठीक है मेरा ट्रिप बन रहा है, या मुझे बॉयज़ ट्रिप पे जाना है, या मुझे गर्ल्स ट्रिप पे जाना है, और आर यू ओके विद दीज डेट्स, या ऐसे मैं चले जाऊँ, या घर पे कुछ इशू तो नहीं होगा, जो भी है, बट you should be allowed. Every man should have friends and every woman should have friends जहाँ पर वो उनका अपना circle है, they're having their own time, and I think one should always cherish their friends. They should never leave them just because अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, but never leave your friends. Yeah. To be honest, and people out there who are listening, just those friends are your gems. And जब फैमिली जब बीच में ख़राब थी या इश्यूज़ थे, जब पार्टनर के साथ इश्यूज़ थे, बच्चों के साथ इश्यूज़ थे, तब फ्रेंड्स हमेशा रहे हैं. एंड आई थिंक वो आपका मी टाइम होता है, वेर इन यू कैन बी विद योर फ्रेंड्स, अपने पुराने लेम जोक्स, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम याद कर रहे हो, जस्ट बीइंग इन द मोमेंट, जब आप उस प्रेशर में नहीं हो कि मैं अभी पति हूँ, मैं अभी बेटा हूँ, मैं अभी फादर हूँ, सारे रोल्स हटा के मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, मैनेजर हूँ, काम वाम कर रहा हूँ ना, कोई प्रेशर नहीं, जस्ट अमंग योर फ्रेंड्स, जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. Got it. I think it should be mandatory for every person who is in a relationship or who is a husband, anybody, that they should have a mandatory friends time every month, and so for the females, same for the females. सो रिलेशनशिप्स के साथ आजकल फ्रेंडशिप्स भी बहुत मीनिंगलेस होती जा रही हैं. लोग साथ में बैठते हुए भी किसी भी पब में भी जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं है कि वो अपनी दोस्ती निभाएं. तो इस पर आपकी क्या से है? Yes, लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड है, एवरीबडी वांट्स टू अपडेट, आज मैंने ये खाया, ये पिया, या मैं यहाँ घूमने गई, बट आई थिंक जो रियल फ्रेंडशिप होती है, अगर आप अपने दोस्त से 10 दिन बात भी ना करो, महीने भर बात भी ना करो, एंड देन सडनली यू कॉल दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर यू फॉर 1 hour टॉक, और आप दुनिया भर की बातें उससे कर लो बगैर ये बताए शुरू किए कि देखो यहाँ से ये हुआ था, फिर ये हुआ था, बस वो पर्सन है आपके लिए अवेलेबल. आई थिंक अगर आपके पास अभी इतना भी टाइम है ना, कि फ्रेंड्स के पास आपके लिए इतना टाइम है, आई थिंक that is good enough, because to be honest आज के टाइम में we are just kind of running races. I don't know how many races we are running. We want to become best at our work. This has become such a hustle culture. We want to raise best of the kids. We want to give a best of life to our parents, to spend time with our partner. हमारी अच्छी social life होनी चाहिए, and then we have to figure out our health, our gym, everything. I think we are all running against time these days. Yeah. सो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतना भी टाइम निकाल पाओ वेर इन यू फील कि एक कॉन्वर्जेसन हो जाए, महीने में एक मुलाकात हो जाए, एंड यू नो दैट देयर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बस पता है कि मेरे 5-6 दोस्त हैं, मैं जब फ़ोन करूँ ये मेरे पास रहेंगे. सो आई थिंक अगर आज के टाइम में इतना भी है, सो यू आर अ लकी पर्सन. हमेशा जो कंटेंट बनता है सोशल पर भी और इतने सालों से बनता है, वहाँ पे बोलते हैं फॉर मेल फ्रेंड्स की भाईचारा ऑन टॉप, तो मेरा भाई है, और औरत के लिए कंटेंट बनता है विमेन के लिए कि भाई औरत ही औरत की दुश्मन है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नहीं, देखो अगर हम फ्रेंडशिप्स कंपेयर कर रहे हैं तो यू विल फाइंड सो मैनी men having groups, they are very core friendship, very tight, and then there would be groups of female friends who will be very tight. जो आप बात कर रहे हो ना कि आदमी आदमी भाईचारा, औरत औरत दुश्मन होती है, आई थिंक अगर हम वो फ्रेंड सर्कल से आप बाहर आ जाओ और रूटीन की बात करो, वेयर इन फैमिलीज़ हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, जहाँ पर आदमी भी आदमी के दुश्मन होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट men generally don't engage, they are not very very emotional or very very minute
in their thinking कि ये आपने मुझे कप ला के दिया, अच्छा भी कप ला सकते थे, इसमें पानी कॉफ़ी भी ठीक से नहीं बनाई, शायद मन ही नहीं होगा, आदमी ऐसा नहीं सोचता। आदमी जनरली हाँ ठीक है आ गया, पी के चले जाओ। बट फीमेल्स ऐसे सोचेगी इसी तरीके से, एंड देन दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग अप थिंग्स, और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, और रीडिंग द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आदमियों की फ्रेंडशिप है और औरतों की फ्रेंडशिप नहीं। फ्रेंडशिप दोनों के केस में आई हैव सीन वेरी सॉलिड फीमेल फ्रेंडशिप्स, एंड दे आर देयर फॉर ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, सेम फॉर मैन। बट ये जो लाइन ट्रू है ये बाकी चीज़ों के लिए ट्रू है, बिकॉज आप ये देखते हो कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को परेशान कर रही है, बट एक फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को परेशान नहीं कर रहा, या अपने सन इन लॉ को परेशान नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे यहाँ पर वैसे भी वैसे रहता है ना, पेट्रियार्की रहती है कि दामाद तो हमारा देवता है, लेकिन बहू शी हैज़ टू एक्सेप्ट जो भी सारी चीज़ें होती है। सो हम जनरली ये देखते हैं अपनी रूटीन रोज़मर्रा की लाइफ में कि फीमेल्स की ना प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर वोकल अबाउट देयर थिंग्स, और आदमियों के कम होते हैं बिकॉज वो इन चीज़ों में सोचते नहीं हैं, वो थोड़ा अपनी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। सो आई थिंक मैं उस टॉपिक को उस तरीके से लेके जाऊँगी कि फ्रेंडशिप्स सॉलिड होती हैं, चाहे वो फीमेल की हो चाहे वो मेल्स की हो, इफ़ इट्स अ जेन्युइन फ्रेंडशिप। इट्स जस्ट द आउटलुक। इट्स जस्ट द आउटलुक। जब फ्रेंडशिप के दायरे से बाहर निकल के देखोगे, हाँ आप ये कह सकते हो कि यू सी मोर, औरत की दुश्मन होती है, यू सी मोर ऑफ दैट इन अ डिफरेंट सेटिंग, इन अ डेली सेटिंग, बिकॉज यू सी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग देयर। आदमियों में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो आपस में वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आई थिंक इट्स मोर ऑफ थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे। सो आई वुड लाइक टू आंसर इट इन दिस वे। सो आप इतने टफ इमोशंस को अब तक हम जितना भी कॉन्वर्जेशन करते आए हैं, आप इसको इतनी स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? बिकॉज स्टोरीज कनेक्ट पीपल। अगर मैं आपको प्रीच करूँ, लेक्चर दूँ, आप नहीं समझ पाओगे। when I tell it from my heart, I tell it from some kind of experience, some kind of incident, या किसी और के साथ ऐसा हुआ, so that people can relate and they don't feel lonely। कि क्योंकि हम ऑलरेडी एक हैवी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मे बी इट्स टॉक्सिक पेरेंट्स और द फैमिलीज़ और अ बैड रिलेशनशिप, तो सामने वाले को आपको बस ये बताना है कि हाँ ये ऐसा हो चुका है या ऐसा होता है, but things will get okay. So when you talk from your heart with that, again I'll come to the same answer, with that genuine concern, I think it reaches hearts of other people. दिल की बातें दिल को छू जाती हैं टाइप्स। सो आजकल बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ अपनी रील्स शेयर करते हैं और कंटेंट बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, और ये शायद ओवर शेयरिंग टॉक्सिसिटी भी पैदा कर रही है, क्योंकि वाइल शेयरिंग दीज रील्स इन ईच अदर्स डीएम्स एक्सपेक्टेशंस बहुत ओवर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो गई हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? देखो सिंपल सा है इसका आंसर। अगर मैं अपने हस्बैंड को एक रील शेयर कर रही हूँ आस्किंग हिम टू डू सर्टेन थिंग्स, be let's for example emotionally more available time, any random thing जो भी आजकल होता है, before sharing that reel will I be able to do that same for him? क्या मैं उतनी इमोशनली अवेलेबल हूँ? क्या मैं उतनी इमोशनली प्रेजेंट हूँ उसके लिए? अगर मैं नहीं हूँ, आई थिंक आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, देन एक्सपेक्टिंग कि मैं सारा होमवर्क अपने पार्टनर को दे दूँ और मैं कुछ ना करूँ। सो बिफोर आई नो दैट देर आर सो मैनी रील्स और डूज एंड डोंट्स एंड रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स गोइंग ऑन, बट द मोमेंट यू आस्क समबडी कि आप मेरे लिए ये करो, you should look inwards and think कि are you providing these things to somebody else? If yes, go ahead, share these reels with them and have those expectations. But if not, then I think you should work on them yourself first, do that thing for your partner, and then have those expectations. So आपकी नज़र में why are Indian marriages failing? इंडियन कल्चर में हम हमेशा ये कहते हैं कि वेस्ट कल्चर बहुत ख़राब है, एंड वो लोग देखो एक डिवोर्स कर लेते हैं, साथ में नहीं रहते, अलग हो जाते हैं, एंड दे हैव अ बैड कल्चर, दे हैव बैड फैमिली वैल्यूज़, एवरीथिंग। और हम अपने कल्चर में क्या करते हैं, इंडियन कल्चर में क्या करते हैं, घर के अंदर बहुत बुरे हालात हैं,
हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, टॉक्सिक माहौल है, बच्चे परेशान हैं, बट हम बाहर क्या दिखाते हैं कि बाहर हम अपने घर पे ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, सबको, कि बाहर हमें अच्छा दिखाना है, एंड देन वी कम एंड प्राउडली से कि देखो हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं, कितनी हमारी रिलेशनशिप्स चलती हैं, इंडियन मैरिजेज आर द बेस्ट मैरिजेज, एंड लुक एट आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस. बट अब जब ये प्रॉब्लम, अब जब लोग नहीं ले पा रहे हैं, द फैमिलीज आर नॉट बीइंग एबल टू टेक इट, द हस्बैंड वाइफ आर नॉट एबल टू टेक इट, नाउ दे थिंक कि सॉरी, नाउ इट इज़ कमिंग आउट इन द ओपन कि यार इससे बेटर तो फिर वो वेस्ट कल्चर है ना. अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा तो फिर पार्ट वेज. यू पार्ट वेज, एंड देन यू गिव योर चिल्ड्रन अ गुड माहौल, एक अच्छा माहौल जहाँ पर उनको ऐसी टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिल रही है. हस्बैंड वाइफ आर फ्री टू फाइंड पार्टनर्स और लव एल्सवेयर, एंड दे आर हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ. बट हमारे यहाँ पर द फैमिलीज आर नॉट हैप्पी, द हस्बैंड वाइफ आर नॉट हैप्पी, बट यू जस्ट टू क्रिएट दैट इमेज इन द सोसाइटी दे आर जस्ट लिविंग. So I think now they know that we will not be taking the bare minimum in the marriages. If there are responsibilities, it has to be split. If there are responsibilities regarding the parents, कि किसके parents साथ में रहेंगे, it is not just कि लड़के के पेरेंट्स ही रहें, लड़की के पेरेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. द हस्बैंड इज़ एक्सपेक्टेड कि बच्चों के केस में ही शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व. इट शुड नॉट बी कि सिर्फ वाइफ ही कर रही है. सो आई थिंक ये सारे क्यूमुलेट होके ये हो गया कि अब नाउ वी वांट मैरिजेस वेर इन वी वांट इक्वल पार्टनरशिप. And by equal, I don't mean to say कि 50-50 of each. Maybe you take on one responsibility and I take on other responsibility. Maybe other responsibility we take 50-50 each. Maybe one point you do 80%, I do 20%. But it has to be like we are walking as partners in this life together. And if not, then it's going to be a very tough rope. And why to raise our kids in such bad marriages? when you know, फिर उनके फ्यूचर पे they will have certain image of relationships, and that is why we are seeing in the Gen Zs these days pressure on one partner and you don't want to do anything. कि अगर husband पे पूरा pressure है तो सारा वही करे. Like you put the pressure on husband कि financial सब यही संभाले, and you put him under the rock, so much of responsibility, and you're not there to support him. एंड इन सम केसेस सारा प्रेशर फीमेल पे है कि अब तुम सब घर देखो, एंड द हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल. सो अगर हस्बैंड कह दे कि ये वाइफ जोक था, और अगर वाइफ हर्ट हो जाए तो गलती किसकी है? अगर आप ह्यूमर को सरकाज़म में बोलो और एक बार नहीं कई बार बोलो तो फिर गलती बोलने वाले की है. सो हमें कई बार लगता है कि सरकाज़म इज़ ह्यूमर बिकॉज वो किसी और के ऊपर है, बट अगर कोई सेम ह्यूमर आपके साथ यूज़ करे आपको तब बुरा लग जाता है. सो और आजकल ये जो वाइफ जोक्स है ना, दे हैव बिकम सो टिपिकल कि अरे जो आपने भी सुना होगा, मैं तो बहुत डरता हूँ अपनी वाइफ से, मैं तो उसके बगैर उसके पूछे कुछ नहीं करता, घर में एक तिनका नहीं हिलता जब तक मेरी वाइफ कुछ कहती नहीं है, और होता ऑपोजिट है. So I don't know why men portray themselves as, you know, we are so scared of our wives and our wives are the ultimate powerhouse in our family. हम तो कुछ करते ही नहीं, जबकि वाइफ हर एक चीज़ पूछ के करती है उसी हस्बैंड से जो बाहर जाके ऐसे पोर्ट्रे करता है कि यू नो मैं तो अपनी बीवी से बहुत डरता. आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट. जबकि अगर बीवी ये जाके बोल देना सोसाइटी में कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड से बगैर पूछे मैं कुछ कर नहीं सकती, और इट वुड बी टेकन सम अदरवाइज. एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी जो वाइफ जोक्स है ना बड़े नॉर्मल हो गए हैं. बट आई थिंक दे आर रियली दे पोर्ट्रे अ वेरी रॉन्ग पिक्चर, एंड दे पोर्ट्रे मैन एज दैट दे आर द वीकर सेक्स, दे आर द वीकर पार्टनर, कि उनको सब झेलना पड़ रहा है और दुनिया के मारे बीवी के मारे, माँ बाप के मारे वही बहुत दुखी है, वही बहुत परेशान है. बट a lot of times it's the opposite actually. When we have seen this कि wives are scared of husbands, wives are asking everything कि क्या करें क्या नहीं करें from husband has a say over everything what goes in the house. So I don't know, these wife jokes should upgrade. they should be telling the real story, not just घिसी पिटी पुरानी stories. You know, in all these complications that are happening these days, which are going public, a family becomes a third party in a relationship. What does a partner do? Should they choose their partner or should they choose their family in this entire fiasco of letting go or having the partner back in life? This is a very trick question.
इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट और आपका पार्टनर और आपकी फैमिली दे आर नॉट अलाइंड एंड यू हैव टू चूज़ फ्रॉम अमंग देम, I think as a person, as a man or a woman, whoever you are, you should look at it logically. कि what was the conflict or genuinely who was at fault? Was it your family who didn't want that person to be in your life and then they created this entire story and blamed that person to make sure that that person is out of your life? या वो आपका पार्टनर था जो बहुत ही मे बी मैनिपुलेटिव था या उसको उसके कुछ और एजेंडाज थे एंड दैट पार्टनर वांटेड कि आपकी फैमिली आपकी लाइफ से अलग हो जाए या उसके अपने कुछ हिडन एजेंडाज हो सकते हैं. सो एज अ इंटेलिजेंट इवॉल्व ह्यूमन बीइंग यू शुड लुक एट इट दिस वे कि गलती किसकी थी एंड जहाँ पर आपको लगता है दैट इफ़ माई फैमिली वॉज राइट स्टैंड विद योर फैमिली एंड इफ़ योर पार्टनर वॉज राइट स्टैंड विद योर पार्टनर. आई थिंक आज के टाइम में वी हैव बीन इवॉल्व इन सच अ मैनर दैट वी कैन टेक दैट डिसीजन. हम पुराने ज़माने में नहीं रह रहे कि कुछ भी हो पार्टनर को छोड़ो और फैमिली को चूज़ करो चाहे फैमिली ने कुछ भी किया हो and family can get away with anything. I think that is a wrong thing which we will carry forward to the generation. I think we should teach. एंड जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो गलत है वो गलत है, अब अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है जस्ट बिकॉज वो किसी बड़े ने किया है तो वो सही नहीं हो जाता. छोटे ने किया है तो गलत है, बड़े ने किया है तो वो सही है. आई थिंक वी शुड बी ओवर एंड अबव दैट काइंड ऑफ टीचिंग. सो जो सही है स्टैंड विद दैट. आपके हिसाब से एक ब्रेकअप का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है? साइलेंस, एक्सेप्टेंस या लेटिंग गो? बहुत ही मुश्किल सवाल है और जिसने कभी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया हो और अगर आप उससे पूछो या बात करो आपको पता लगेगा कि फ्रॉम द डे योर हार्ट गॉट ब्रोकन, फ्रॉम दैट डे एवरी स्टेज वेदर इट इज़ ये क्या हुआ है मेरे साथ एंड देन दोज एंडलेस डेज ऑफ क्राइंग एंड देन फाइनली एक्सेप्टिंग कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, इट हैज़ द पर्सन इज़ गॉन, इट्स अब वो लाइफ पहले जैसी नहीं रही एंड देन मूविंग बियॉन्ड दैट स्टेज स्लोली. और उसमें फिर आप झिझकते हो किसी नए रिलेशनशिप में जाने में, हर स्टेज में आपको ये डर लगता है एंड यू कंपेयर योर लाइफ इन यू नो जब आप उस इंसान के साथ थे तब कैसी थी और अब कैसी है और आपको लाइफ मतलब पूरी हर स्टेज आपको लगता है कि इसको जीना कैसे है विदाउट दैट पर्सन. I think one goes through really, I would not use such harsh words, but really hell when they face a heartbreak. And it is very tough to recover from that. But ultimately, it is the truth of life that you have to move past it. Because जो इंसान चला गया आप उसको कितना भी चाहो ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ में नहीं रख सकते. सो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो इंसान चला गया, अपनी मर्ज़ी से गया या कुछ भी हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग और वो नहीं आ सकता वापस. सो यू विल हैव टू लिव योर लाइफ. बट वो जो जर्नी है फ्रॉम ब्रेकिंग अप एंड रियलाइजिंग कि एक्सेप्टिंग कि ओके आई विल हैव टू लिव माई लाइफ विदाउट दिस पर्सन, सो यू विल हैव टू रियली फाइट एवरी डे ऑफ योर लाइफ. आज किसी की डेथ हो जाए कल वो खाना भी खाएंगे, अपनी लाइफ रेगुलर जिएंगे. कि इंसान को किसी भी जगह पे रख दो दे विल अडेप्ट. किसी के जाने से किसी के होने से ना होने से उनकी लाइफ रुक नहीं रही है बट वो चल रहे हैं एंड इट इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. हम कहते हैं ना कि हम मर जाएंगे इसके बगैर. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ हॉलोनेस इन योर हार्ट, यू विल ऑलवेज मिस दैट पर्सन बट यू विल गेट ऑन विद योर लाइफ. एवरीबडी डज एंड इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि किसी के जाने से होने से ना होने से किसी की लाइफ रुक नहीं रही है, चलती है, दुनिया चल रही है. सो आई थिंक बट इट इज़ टफ एक्सेप्टिंग. डू यू थिंक मिलेनियल्स, जेन जीज और जेन अल्फ़ा अब आज की डेट में वो भी 12-14 साल के हो गए हैं और रिलेशनशिप जल्दी शुरू हो रहे हैं, तो सबके अलग अलग तरीके हैं अपने हार्ट ब्रेक्स को डील करने के? ऑफ कोर्स यस, बट जैसे हम बड़े हुए हैं, वी ज़ारा कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड वी हैव सीन पहला प्यार, यही हमारा यू नो इसी से हम शादी करेंगे. वी हैव रोमांटिसाइज्ड लव सो मच मिलेनियल्स. तो हमें लगता है कि यही है बस, इसके बियॉन्ड कोई भी नहीं है. एंड
हम प्यार को एक वो ऐसी तवज्जो देते हैं कि वी प्लेस लव हाईली इन आवर लाइफ्स कि हमें चाहिए, और अगर वो ब्रेकअप हो गया तो शायद मुझे कभी किसी से दोबारा प्यार हो ही नहीं पाएगा, या मुझे कभी कोई ऐसा मिल ही नहीं पाएगा, या मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. रिमेंबर दैट लाइन फ्रॉम कुछ Yeah. कुछ होता है. Yeah. सो आई थिंक मिलेनियल्स हैव दैट काइंड ऑफ thought process wherein we have seen all those romantic movies, those Bollywood movies. Our thoughts shaped up because of those, and we have always believed in the idea of love and true love story and happy endings. Gen Zs think of more of they are more vocal about it. और हमने ये भी देखा, मिलेनियल्स के साथ ये भी होता है दैट वी विल एक्सेप्ट एनीथिंग कि कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक से बात ही तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, या खाना नहीं ठीक से बना रही, मैं इसे बता दूंगा कैसे बनाते हैं, जो भी है सारी चीज़ें. Gen Zs are different. They will say it on your face that I'm not feeling it, या हमारे बीच की केमिस्ट्री थोड़ी ख़राब हो रही है. They know what they want in their life. हमारे मिलेनियल्स के केस में प्रायोरिटीज़ रिलेशनशिप बन जाता है. Gen Z's के केस में प्रायोरिटी वो भी है, एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ. Gen Z's के केस में यह है कि अगर मेरे को अपनी लाइफ से ये चाहिए और इस रिलेशनशिप में रह के मैं स्टक फील हो रही हूँ, सो आई वुड रादर बी आउट ऑफ इट. एंड आई थिंक दे आर टेकिंग इट होलिस्टिकली कि रिलेशनशिप है बट मैं भी हूँ, जो मिलेनियल्स के केस में नहीं है. वी मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. हस्बैंड की जॉब यहाँ है, मुझे भी यहाँ रहना है. वाइफ को कहीं और मिल गई, नहीं हम तो यहीं रहेंगे. सो सैक्रिफाइस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर मिलेनियल्स. Gen Z's के केस में वो सैक्रिफाइस वाला पार्ट इतना नहीं है. दे आर लाइक कि देखो हमारी लाइफ है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहने में तुम्हारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है, नहीं तो नहीं. और जो जेन अल्फा है, आई थिंक इट इज़ टू सून फॉर टू टॉक अबाउट द हार्ट ब्रेक्स. आई थिंक दे आर मोर इन द फेज ऑफ ठीक है, रिलेशनशिप है, नहीं है. आई थिंक it will be too soon for a heartbreak. I don't know if a 13-year-old will actually experience a heartbreak. Maybe once they are 16 or 17 or 18. Maybe I might be wrong. Maybe उनको genuinely heartbreak feel हो रहा हो, but I really don't know how Gen Alpha will take heartbreak. I've seen a lot of people at a later stage of life, when they're in their late 40s, early 50s, they feel they compromise that ठीक है, I got physically cheated, but I'm not emotionally being hurt, and I'm too tired to move on to another person. Or I've reached a point where how do I start the last 50 years of my life with another person, and then they let go of whatever they've come to know of their partner. So there are situations where phases change, and according to a phase of a person, a final kind of a decision is taken ki nahi, I think these are various perspectives, and that's why we wanted to capture yours to understand कि क्या सही है क्या गलत. मे बी भाई आप वाली बात है कि अगर रिलेशनशिप की शुरुआत में हो जाए, सो इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर ब्रेकअप, या आफ्टर वही 10-15 years ऑफ मैरिज लगे कि चलो ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम ऑफकोर्स love demands a lot of effort. It is not just saying I love you ki I love you. That is not sufficient. It demands a lot of effort. So does marriage. और अगर आपको लगे कि यार यहाँ पर तो मुझे एफर्ट नहीं डालना, या आई एम टायर्ड, या सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई नीड समथिंग न्यू इन माई लाइफ, तो शायद वही आप वाली बात है. So do you think taking breaks is okay? I don't know how will you define breaks? So we're off. We're broken up, and we've kind of done But the how paperwork. do you? Oh, okay. So we're in a way divorced, and we're on a break, and then both of them feel that get back to each other. So do you think that's okay as an idea to go back to the person? I think relationship is something which you should have the total independence of driving however you want to. Aaj you loved somebody, you got married, things didn't work out, you broke up, and now you want to get back to the person. I think you should get back to the person. I think relationships are one thing. हमने आज के टाइम में आई थिंक द जेंजीज आर रियलाइजिंग कि, या हमें लगता है रिलेशनशिप्स आर रियली वी लॉस्ट देम. जो इम्पोर्टेंस होती थी ना रिलेशनशिप्स की, कि यार ये बहुत ज़रूरी है. वी हैव एक्चुअली बिकम लोनली. लोनलीनेस हैज़ बिकम अ
epidemic. The epidemic is the Yeah. right word? Yes. And people are dying because of it. So I think one should be free to and allowed to choose how they want to carry their relationships. So one should not fall under a pressure कि ये format है कि अब हमने ब्रेकअप कर लिया, अब हम साथ में नहीं आ सकते, या डिवोर्स कर लिया, साथ में नहीं आ सकते. आई थिंक इफ़ यू वांट टू गेट बैक टू द पर्सन यू लव, आई थिंक यू शुड. रिसेंटली एक OTT प्लेटफॉर्म पर एक क्वेश्चन बहुत वायरल हुआ था कि इमोशनल चीटिंग सही है, एक्सेप्टेबल है, कि फिजिकल चीटिंग एक्सेप्टेबल है, किसी भी फॉर्म ऑफ चीटिंग में से क्या चीटिंग ऐसी है जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप आगे चल सकता है? तो आपका क्या नज़रिया है? I made a video on this, and it is genuinely so conflicting because a lot of people had so many thoughts. They are like, emotional cheating भी cheating होती है. मतलब आपका पार्टनर किसी और के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कर रहा है या कर रही है, कि सॉन्ग्स शेयर हो रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, या आज मेरी लाइफ में ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें. एंड देन बाय डूइंग सो यू आर बिकमिंग एब्सेंट टू योर पार्टनर, बिकॉज आपने एक साइड में एक अपना इमोशनल सपोर्ट बना लिया है, और आपको लगता है कि मैं इस इंसान को सब कुछ बताऊं, अच्छा हुआ इसको बताऊं, बुरा हुआ इसको बताऊं, और इस चक्कर में आप अपने पार्टनर के लिए तो एब्सेंट हो गए, आप उसको अब कुछ बता ही नहीं रहे हो. दैट पार्टनर हैज़ लॉस्ट दैट इम्पोर्टेंस. तो इमोशनल चीटिंग भी एक तरीके की चीटिंग ही हुई. फिजिकल चीटिंग इज़ तो लाइक एपिटोम ऑफ एनी काइंड ऑफ चीटिंग, कि चलो ये तो बहुत ही अब इट टोटली डिपेंड्स. अ लॉट ऑफ कपल फील्स कि ठीक है, वी आर ओके, वी आर लिविंग इन दिस डे एंड एज दैट इट इज़ फाइन कि पीपल दे जस्ट have a weak moment and it's fine, they are back in the relationship. So a lot of couples might be okay कि ठीक है, there was some accident, it's fine, we are okay, it is not a big issue for us. Yeah, and same if they think that okay, emotional cheating, okay, हमें नहीं फ़र्क पड़ता इससे. बट कुछ लोग होते हैं जिनके लिए इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग इज़ लाइक grounds for separation. So it totally depends that what kind of relationship you share with your partner, and how that equation is. And for as a couple, if you feel that it's okay, then it's totally your choice. अभी एक न्यूज़ में एक इंडियन क्रिकेटर की एकदम लास्ट डे पर शादी कैंसिल हो गई. देवर बहुत वायरल हुई थी ये न्यूज़. सो डू यू बिलीव कि नज़र लगना रियल है? आई डोंट बिलीव इन नज़र. एक मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में आई स्टार्टेड विद दिस कि हाँ, नज़र रियल है, बट मेरे लिए नज़र एनर्जीज़ होती है. कि अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, इफ़ आई एम थिंकिंग गुड अबाउट यू, इफ़ आई हैव अ गुड इंटेंशन टूवर्ड्स यू, आपको वो फील होगा, आप मेरी प्रेजेंस में आप अच्छा फील करोगे. एट द सेम टाइम अगर आई एम कैरिंग बैड इंटेंशंस, बैड थॉट्स अबाउट यू, आपको यू विल फाइंड माई प्रेजेंस वेरी ड्रेनिंग. आपको लगेगा कि यार इसकी प्रेजेंस ना बहुत हैवी लग रही है मुझे, और इसके साथ बैठ के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, या सडनली मेरा मूड ऑफ है. तो इट इज़ नॉट नज़र, इट इज़ अबाउट व्हाट आई एम कैरिंग एज एनर्जी. तो जब हम लोगों को कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, यू रेडिएट दैट पॉजिटिव एनर्जी, या नेगेटिव सोचने से नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होती है. सो आई बिलीव इन दोज एनर्जीज. सो जो आप सोचते हो वही आप आगे रेडिएट करते हो, और फिर वही आगे फील करते हैं लोग. सो आई वुड नॉट से कि शादी कैंसिल होगी बिकॉज ऑफ नज़र. ऐसे तो अम्बानी के पास पैसे ख़त्म हो जाने चाहिए क्योंकि लोग कितना नज़र लगाते होंगे दिन रात, बट नहीं हो रहे ना. तो आई डोंट थिंक कि वो वाली बात है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो यू कैन से फेमस पीपल, दे हैव अ पब्लिक लाइफ. तो उस हिसाब से तो उनको डेली नज़र लगनी चाहिए. बहुत सारे लोग क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में. सो आई थिंक नज़र इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज यू कैरी एंड हाउ दैट एनर्जी हैव्स दैट इफेक्ट ऑन अदर पीपल. सो पहले के लोग कर्म के बारे में बहुत सोचते थे, बात भी करते थे. आज के टाइम पर इतनी बिजी लाइफ है, सुबह से शाम तक, जैसे आपने बोला कि हम टाइम को चेज करे जा रहे हैं और पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म होता है. आप कर्मा में बिलीव करते हैं? Yes, I do. But I would like to clarify one thing. बहुत लोग को लगता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कोट्स आते हैं, कर्मा इज़ अ डैश 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 एंड इट विल कम टू यू, उस तरीके से. कर्मा इज़ नॉट अबाउट व्हाट विल हैपन टू यू, कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो देखो भगवान आपको देख लेगा.
या आपके साथ बुरा होगा, कर्मा विल गेट बैक टू यू. नो, कर्मा इज अबाउट व्हाट यू डू एज अ पर्सन. इट इज़ कर्म, योर ओन एक्शंस. तो आई थिंक हमने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया है कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, सामने वाले ने कुछ किया है तो देखा तुम्हारे साथ, कर्मा इज़ अ थिंग एंड इट विल मेरा बदला लेगा. नहीं, कर्मा इज़ अबाउट व्हाट यू डू. सो आपके जो एक्शंस हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस. And I think I think people should understand that it is not about other people you're talking about. It is your own self. अगर आपके actions अच्छे हैं, then good things will happen to you. कहते हैं ना, it's a circle of life. Yeah. What goes around comes around. So think of it as that way. एंड अगर पूरे दिन में ऑफ कोर्स सोचने का भी टाइम नहीं है, खुद के लिए भी टाइम नहीं है, बट अगर आप किसी के लिए एक जेन्युइन केयर कंसर्न ही सोच लो, आई थिंक दैट इज़ इनफ. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग नेगेटिव अबाउट पीपल कि इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया. किसी जिससे आप प्यार करते हो उससे अगर आप एक कप बस चाय पिला दो कि यार ये बहुत इंसान थका हुआ है, इसको चाय पिला देते हो, आई थिंक दैट इज़ योर कर्म. आज के टाइम में अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप कॉन्शियस ऑफ हाउ यू आर विद पीपल, काइंड हो, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कर्म यू आर डूइंग. आप डेस्टिनी में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक एक्शन बेस्ड लाइफ में? आपको एक किस्सा बताती हूँ. बहुत तूफान था और एक बोट में एक इंसान था, वो जा रहा था. बहुत ही बोट ऊपर नीचे घूम रही थी एंड दैट पर्सन वाज स्कैर्ड कि वो आज मर जाएगा. तो उसने भगवान को कहा, भगवान मुझे बचाओ. तो एक पास से एक दूसरी शिप गुजर रही थी. उन्होंने कहा, अरे तुम इधर आ जाओ हमारी शिप पे, तुम मर जाओगे. उसने कहा कि नहीं, भगवान बचाएगा. वो शिप चली गई. फिर उसने फिर से कहा, भगवान मुझे बचाओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से. फिर एक इंसान आया दूसरा कहीं पर आसपास, तो उसने कहा कि मैं बचाता हूँ, तुम चलो इधर से. तो उसने कहा कि नहीं, मेरा भगवान बचाएगा. और वो इंसान डूब के मर गया. सो आई थिंक आप समझ गए कि भगवान है, बट आपको इशारा कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग यू. बट आपको एक स्टेप भी तो लेना पड़ेगा. आप घर बैठे बैठे ये सोचो कि चलो मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं बिलियनियर बन जाऊंगा, या मेरी बहुत अच्छी शादी होगी, मेरे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, बट आप उसी सोफे पे बैठकर बस ये सोचना चाहते हो. आई थिंक इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर. यू शुड नीड टू वर्क फॉर इट, यू शुड डू सम एक्शंस फॉर इट. आप मेहनत करोगे तभी तो वो आपके पास आएगा. सो आई थिंक डेस्टिनी ऑफ कोर्स है, भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा है या आपकी डेस्टिनी में कुछ है, वो है. बट जब तक आप उसकी तरफ नहीं चलोगे तब तक आपको वो मिलेगा नहीं. सो आई थिंक यू नीड टू बी एक्शन ओरिएंटेड फॉर श्योर. सो अब आज की एक यंग ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एवरी थर्ड पर्सन इज़ लोनली. सो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर पाओ, कोई एक अच्छा दोस्त, परिवार में कोई एक अच्छा सपोर्ट, या आपका कोई पार्टनर, या आपका कोई कॉलीग, कोई भी अगर आपके पास एक इंसान ऐसा हो जिसके साथ आप बैठ के रो सको, जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सको, जो आप जब परेशान हो तो वो आपको गले लगा के कह सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई थिंक यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स. अगर आपके पास ऐसा एक इंसान है, और अगर ऐसे 5 इंसान है तो यू आर रियली रियली लकी. लेकिन अगर आपके पास एक भी ऐसा इंसान है तो आई थिंक लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी. सो एडवाइस यही है दैट वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स. और रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं बनते कि आप कुछ भी ना करो, आप सामने वाले से सारी एक्सपेक्टेशंस रखो. यू नीड टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप. आपको सामने वाले के लिए भी उतना अवेलेबल रहना होगा, उतना उसके लिए एफर्ट देना होगा, और तब जाके वो रिलेशनशिप बनती है. एंड देन यू विल फील कि लाइफ इज़ मच सिंपलर. अकेले लड़ने में और किसी का कोई आपके साथ है और आपके कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं तेरे साथ हूँ तो टेंशन मत ले, बहुत फ़र्क होता है. सो आई थिंक we need to work on the relationships. So thank you for clearing at least my concepts about relationships, about today's culture. But हमारे शो की एक प्रथा है कि हम और ज़्यादा अपने गेस्ट को जानने के लिए एक रैपिड फायर करते हैं, and which is a little different concept from other podcasts. But do you think you're ready to do this? Yes, let's go for it. One word that best describes today's dating culture. Convenience. Heartbreak heals faster with time or with truth?
with truth. Silence after a fight, peaceful or painful? Painful. One line that instantly screams emotionally unavailable. You don't care for me. Situationships, protection, or self sabotage? Self-sabotage. Which recent Bollywood movie, according to you, best explains today's situationships culture? I think Tu Jhooti Main Makkar. A movie that unintentionally romanticized toxic behavior. Kabir Singh. Which film shows that love alone is not enough for a relationship? Tamasha. Love today is more about effort or convenience. Convenience. Biggest red flag people ignore because it feels normal. Disrespect wrapped in humor. Most underrated green flag in a relationship. Kindness. Is closure necessary or overrated? I think it's overrated. One habit that slowly kills a relationship without people realizing. Not putting in the efforts. Do people fear being alone more than being unhappy? Yeah, the fear of being alone. Yeah. One truth about love nobody prepares you for. Love doesn't stop other people from hurting you. You will still get hurt. All right, thank you so much for this, and I'm really, really grateful that you made it for this podcast. And I hope, apart from everything about relationships and people, I learned to get more information from you through fintech as well. Thank you so much. Thank you for inviting me. I had an amazing time here, and it just turned out to be just routine conversation. And honestly, it was like speaking to a friend. So thank you for this. उम्मीद है आज की कॉन्वर्जेशन ने आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर किया होगा. अगर आपको ये एपिसोड रिलेटेबल लगा हो तो शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस कॉन्वर्जेशन से अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिलेगी. मैं हूँ तने तुलसानी. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.